Hello students, this is Hardik sir. As we have completed the first part of this lesson, resources from standard 8 our environment. Now we are heading towards the part 2. We will be starting our part 2 with types of resources. So in this video we are going to study about the types of resources. And with the next part, the final and the last part, we'll be discussing about conserving our resources. So before heading towards conservation, first we will understand what are the types of resources. But before heading towards types of resources, let us have one activity just to recall the part 1. So for part 1, as you have studied about Amma's remedies and how it can be patented and whatever it is, so about that only an activity is given in on the same page. So during the list of certain resources, you have to only identify that which are the resources have commercial value and which have no commercial value. So circle those resources from Amma's list are regarded having no commercial value. So आपको सिर्फ उन्हीं को सर्कल करना है जिनका कमर्शियल वैल्यू नहीं है, तो अपने आप जिनका कमर्शियल वैल्यू है वो सामने आ जाएगी. हियर यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम Amma's list, and this is the list. From that you have to complete your activity. After completion of your activity, soon after pausing this video, soon come back to the list and then we will start our types of resources. So hope you have already completed the list, and now we are in the part of types of resources. So first we will find that there are three main types of resources, that is natural resource. Second you will find that is human made resources. This is our second part. And the third is human resources. Human itself are resources. So there are three parts basically. So let us now start with our first part, that is natural resources. So natural resources are also can broadly categorized into renewable and non-renewable resources. But before jumping to renewable and non-renewable resources, we will understand what are natural resources. So resources which are drawn from nature, basically they are 100% natural. So resources that are drawn from nature and used without much modification, हमें उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं करने की ज़रूरत है और हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज बन जाते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर ऑल्सो हेल्प्ड विद एग्जांपल्स. सो जैसे कि आपके आसपास की हवा, द एयर विच वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, सॉइल, मिनरल्स, ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं. You also will be helped with the flow chart in your important points. So air, water, soil, mineral, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, पर हम इसमें थोड़ा बदलाव करके many of the times we modify them for our comfort level. So many of these resources are free gifts of nature. ये सब हम यहीं से पाते हैं, नेचुरली ही पाते हैं, and can be used directly. Many of the things are used directly, but in some of the cases हम उसमें मॉडिफाई करते हैं, हम टेक्नोलॉजी की मदद से और ह्यूमन नॉलेज की मदद से उसमें कुछ बदलाव लाते हैं. सो दैट वी विल बी स्टडिंग इन द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स, और कई बार इसी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए हमें टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम उसका बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर सकें. अब आते हैं उसके ही पार्ट में, सब टाइटल आपको मिलेंगे उसके सब पार्ट्स, कि जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आर द टू मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो पहले तो वर्ड आप समझ सकते हैं रिन्यूएबल, तो जो रिन्यू हो सकता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? अगेन यू हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. तो जो तुरंत ही वापस रिन्यू हो जाते हैं उसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. सम ऑफ दिस, अगर आप देखें तो सम ऑफ दिस unlimited, some of these are unlimited and are also not affected by human activities, जिनके ऊपर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी है. तो हमारी एक्टिविटीज़ से ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं और हम उसका लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं. पर फिर भी हमारी केयरलेसनेस की वजह से, बिकॉज वी आर वेरी केयरलेस, सो येट केयरलेस use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. यानी यही वाटर जो अबंडेंस क्वालिटी में प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाया जाता है, सॉइल जिसका एक थिन लेयर है, और हमारे फॉरेस्ट जो नेचुरली ग्रो हो चुके हैं,
तो ये कहीं ना कहीं उनका स्टॉक हमारी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से अफेक्ट हो सकता है, यानी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वॉट एवर, बट यहाँ पे चांसेस है ज़्यादा डिग्रेड होने के। सो वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स हमें लगता है, बट स्टिल वी फाइंड द शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप अवर नेचुरल वाटर सोर्सेज। तो नेचुरल वाटर सोर्सेज जो सूखते जाते हैं इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे, कि हमारी नदियाँ, हमारे तालाब जो सूख रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट सप्लाइड इन ऑल द पार्ट्स, and that is the basic problem that it has been occurred because of our number of activities. So it has been affected, that stock has been affected because of human beings. Now first, before going to non renewable, we will try to understand the resource stock. So that's the new word for you. Here you are helped with the glossary, stock of resource. So it is the amount of resources that is available for use. So what amount of the resource is available? So if we will keep it using again and again, and overuse will lead ultimately to the shortage, and because of the shortage it may be very expensive, and over a period of time it might not be available to the next generations. So stock of resource is very important. So according to the stock we have to use it. Now let us come back again to the non-renewable resources. So now what are non-renewable resources? So non-renewable resources are those which have a limited stock. The first and the most important, repeat the statement again with me. Non-renewable resources are those which have a limited stock. So which resources have limited stock? Number of things you will find around you. So these stocks, once if they are exhausted, अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो फिर उन्हें रिन्यू होने में, उन्हें रिप्लेनिश होने में दे विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इनको हज़ारों साल लगेंगे वापस रिप्लेनिश होने में, तैयार होने में। पर ये वक्त एक इंसान की लाइफ से इट इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, और इसी वजह से सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। यानी हज़ारों साल बाद यही कोल, यही पेट्रोलियम और नेचुरल गैस शायद रिन्यू होगे, रिप्लेनिश होगे, बट हज़ारों साल बाद। इट मीन्स टुडे इफ़ वी हैव यूज्ड इट, then to renew it will take thousands of years, and that's why it is considered as non-renewable resources. So the distribution of natural resources depends upon number of physical factors. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर आप चाहे, आप चेक करना चाहे तो दुनिया के हर कोने में इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन अनइक्वल मैनर, क्योंकि हर जगह सभी रिसोर्स इक्वल क्वांटिटी में नहीं पाए जाते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं, लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड, और इन्हीं सब की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल पाया जाता है, बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। क्योंकि ये सभी फैक्टर जो हमने बात की है, टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड। टेरेन जैसा आपको पता ही है, रिलीफ फीचर जो नेचुरल लैंड मास है, नेचुरल लैंड फीचर है। Climate, as you all know, the continuous aggregate average weather conditions over a long period of time, that is for 30 or 35 years, that is known as climate. Altitude means height. तो ये सब पूरी दुनिया में सेम नहीं है, और इसीलिए क्योंकि ये फैक्टर सेम नहीं है, the resources are also unequal, they are also distributed unequally. Now we will head towards the second part, that is human made resources. So human made, as from the title itself you will understand, which are made by humans. They are found naturally, but they have been modified by the humans with the help of tools and technology, and that is how this resource ultimately are used. They are totally changed, their original form is totally lost, and we have found a new form. So sometimes natural substances जो पाए जाते हैं, ऐसे कुछ पदार्थ, become resources only when their original form has been changed. जब उनका हम ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं उसके बाद ही वो यूज़ करने के लायक हो जाते हैं। जैसे कि आयरन ओर अगर हम सीधा हमारे हाथ में आता है तो इट वाज नॉट अ रिसोर्स, बट फिर पीपल सीखे, लोग सीखे, अल्टीमेटली पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट, उसमें से हमने आयरन को निकाला और फिर उसी से हमने तरह तरह की चीज़ें बनाई। नेक्स्ट यू कैन फाइंड पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये जितने भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स या मशीनरी या व्हीकल्स बनाने के लिए, या इन्हें बनाते हैं, तो दे आर ऑल ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स।
सो हमारा जो टेक्नोलॉजी आप आज देख रहे हैं, आज एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आपका लेसन चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी इंसान ने ही इन्वेंट किया है। सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। सो ह्यूमन हमारी बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मॉडिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, और कहीं उसका स्किल, उसका नॉलेज लगा के ही हम उसे बेहतर वे में रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल फाइंड समथिंग दैट व्हाट मोना एंड राजू हैज़ अंडरस्टैंड। सो मोना फर्स्ट से सो पीपल लाइक अस, हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं जो कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और इसी तरह से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। सो मोना ऑल्सो अंडरस्टूड इट एंड शी ऑल्सो नोडेड इन अ पॉजिटिव वे, एंड इवन राजू ऑल्सो अग्रीड विथ हर। सो ही ऑल्सो सेड yes it is true. So you also are requested to make a list. आप भी एक ऐसा लिस्ट बनाएं ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड यू, जो आपके आसपास दिखता है ऐसे कुछ रिसोर्सेज। आप भी एक छोटा सा लिस्ट बनाएं, कम से कम 5 चीज़ें जो इंसान की बनाई हुई है। आप जहाँ बैठे हैं उसी कमरे में देखेंगे तो आपको आराम से 5 चीज़ें मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन रिसोर्सेज। एज वी डिस्कस दैट ह्यूमन इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स, सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। यहाँ हम पॉज लेंगे, वी विल हैव दी स्टोरी। यहाँ एक कहानी आपको छोटा सा दिया हुआ है। सो पहले न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं कि कुछ खबर आई है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड अ सल्यूशन। तो ये सल्यूशन के लिए शायद मांग हो सकती है किसी फार्मर की। ओके, सो ड्राउट की वजह से उनका जो भी क्रॉप्स है सब फसल बर्बाद हो चुका है, एंड नाउ ही वॉन्ट्स अ सल्यूशन. So here this lady says that's it. It may be possible that she has found some solution, and after that solution, when she presented this solution to the farmers, now what is the reply of the farmer? It's all thanks to the knowledge, education and skill we found a solution. So when this lady found a solution, so she says that it's all thanks to the knowledge, क्योंकि ये सब इन्हें धन्यवाद दे रहे थे, तब इनका कहना है दिस लेडी साइंटिस्ट शी टेल्स दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल, और उसी वजह से कहीं ना कहीं हमें सल्यूशन मिला है। तो ये भी एक रिसोर्स कैसे हुआ अब हम देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। ह्यूमन्स आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू एवरीवन, एंड साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स to combat problems related to agriculture and improve farm production. So scientists are also human beings, farmers also human beings. farmers जो सप्लाई करते हैं फूड ग्रेन्स, और साइंटिस्ट जो कि उन्हें बढ़िया से बढ़िया कोई सजेशन दे के फार्म प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आए, ऐसे कुछ आइडियाज़ देंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज. तो दैट्स वाई वी कैन से that humans are also interdependent. So for a farmer, scientists are resource, and for people, general people, for all of us, even the farmers are also resources because they provide us with food. So now let us come back now, why human resource? So human is also a resource क्योंकि people make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the टेक्नोलॉजी टू डू सो. और उनके पास जो टेक्नोलॉजी, नॉलेज है, स्किल है, उसी वजह से वो शायद रिसोर्स को बेहतर वे में प्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ रिसोर्स, वो भी एक स्पेशल रिसोर्स बन सकते हैं. सो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग ही ह्यूमन रिसोर्स है. एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्स. एजुकेशन और हेल्थ, both the things ultimately they help in making people a valuable resource. They improve the quality of people's skills. They are all interdependent and they are able to create more resource. That is why it is known as human resource development. तो इंसान ही जब कहीं ना कहीं दूसरे इंसान को तैयार करते हैं by the means of knowledge, by the means of technology, जिस तरह उनमें डेवलपमेंट आता है, इसीलिए उस चीज़ को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं. बिफोर गोइंग फर्दर we will find some more information about human resource. So now what is human resource? So human resource refers to the number of quality and abilities of the people. So वो कहीं ना कहीं हमारी ही क्वालिटीज़ के साथ हमारे नंबर्स, कितने लोग हैं, क्या उनकी एबिलिटीज़ है, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहता है. दो
there are differing views regarding the treatment of humans as a resource. One cannot deny the fact that it is a skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. लोगों के अलग अलग व्यूज़ है, people have different views about the human as a resource, but we cannot deny the fact, nobody can deny the fact that ultimately human skill, human knowledge ही है जो किसी भी चीज़ को, एनी फिजिकल मटीरियल को कोई वैल्यूबल रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है. सो दैट्स वाई ह्यूमन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. हियर यू विल फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ नाइटमेयर दैट मोना हैड. सो व्हाट इट इज़ अबाउट, ये डरावना सीन क्या है क्या नहीं, दैट वी विल बी स्टडिंग विद द पार्ट 3. थैंक यू. कीप लर्निंग.